begin with, I'd like to request all the dignitaries to please come forward and light the lamp. My name is Yash Tiwari and I am a student of first year, and I am going to be your host for this much anticipated intercollegiate debate competition of today. I'd like to welcome our honorable dignitaries for gracing this august gathering with their presence. Dr. Asmita Dubey ma'am, Principal, Jagran College. SP Tripathi sir, Director, Jagran Institute of Management and Mass Communication. Ashrita Shukla ma'am, Assistant Director, GIMSI. I'd also like to welcome and extend my heartfelt gratitude to our judges of the day, Dr. Alok Bajpayee sir and Bhavya Sharma ma'am, for sparing their precious time from their busy schedule and being a part of this event. Thank you so much. Bhavya Sharma ma'am has done her MA in History as well as in English. She is a B.Ed qualified teacher with an inspiring and remarkable 11 years of teaching experience. As a teacher, Bhavya ma'am has not just taught her students, she has mentored them, guided them, and pushed them ahead in their life. She is currently working at Dr. Viren Saru Public School, Kant. She has been writing blogs on her social handles that the masses feel appealed and intrigued by. Ma'am, we are really thrilled to have you today with us. Dr. Alok Bajpayee sir has contributed a great deal to the diverse fields of psychiatry, physics, film, music, literature, and teaching. Between 2003 to 2004 and 2006 to 2007, Alok sir has worked as a consultant psychiatrist in Australia. Apart from practicing psychiatry, a consistent focus of his work has been with child and adolescent mental health, and he has established a unique child and adolescent mental health center in Kanpur. I have known Alok sir personally for a very long time now, and there is no amount of words that can explain how very inspired I and various other people all around the world feel by his contribution to our society. So thank you so much sir for that also. Alok sir is a consultant psychiatrist to the IIT Kanpur students. He is also a co-mentor at USID eGurukul organized by IITs. Sir, we are really happy to have you today with us. I now request the Assistant Director of GIMSI, Ashrita Shukla ma'am, to please present a sapling as a token of our love and appreciation to our honorable guests. So before beginning with our inter-college debate competition, there are certain rules that all the participants must keep in mind while they are performing over here on stage. Firstly, the topic of today's debate, as you can see on the poster, is social media destroying the quality of human or social interactions? Firstly, you have to speak either for or against the statement. यानी कि या तो आप जो statement दी गई है उसके favor में बोलेंगे या फिर आप उसके विपक्ष में बोलेंगे. You will be allotted 4 minutes to speak on your motion and a reminder bell will be rung after 3 minutes 30 seconds. यानी कि आपको 4 मिनट का टाइम अलॉट किया गया है यहाँ पर अपनी स्पीच बोलने के लिए, लेकिन 3 मिनट 30 सेकंड पे एक वार्निंग बेल बजेगी, जिसका मतलब ये है कि अब आपको अपनी स्पीच वाइंड अप करना शुरू करना है. Please note that you are not required to mention your college name while you are speaking here.
or you will be disqualified. आपको अपने कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना है। आप जब आ रहे होंगे मैं आपके कॉलेज का कोड बोलूंगा, आपका नाम बोलूंगा। आप अपना नाम बोल सकते हैं, लेकिन कॉलेज का नाम बोलने पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। You will be marked on the basis of content, your speech delivery, and your way of presentation. You can speak in any of your preferred language between Hindi and English. आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। You are not allowed to come up on stage with any written material whatsoever. आप स्टेज पर किसी piece of paper के साथ या फिर written speech के साथ नहीं आ सकते। So we are now going to begin with our debate competition by calling the first participant on the stage. And the first participant of the stage comes from the college code A. So firstly, I'd like to call upon stage Tina Ahuja. All the best, Tina. And please also mention whether you are speaking for the motion or against the motion, okay? Social tools are not just about giving people a voice, but giving them a way to collaborate, contribute, and connect. A very delightful morning to respected teachers, honorable judges, and my dear friends. Today I, Tina Ahuja, stands on this platform to speak against the motion that social media is destroying the quality of human interaction. In the 21st century, social media is the most powerful medium of communication. It has entered into every walks of our lives. The world has been united by the touch of a button, bringing friends, families, as well as business associates to a platform of virtual interaction. Social media is a very effective tool for interaction, and the world has been united by the touch of a button. Social media has provided a platform which makes everybody feel like a free bird. From a top-notch politician to an elite businessman, from famous celebrities to a common man, all are free to express their views. All the best, Khazina. A very good morning to one and all present here. Today I am here to speak for the motion social media is destroying the quality of human interaction. So my name is Khazina and I have two younger sisters. Based on this, would you elbow your way through a busy party to hang out with me? Probably not. If I tell you I make the best pasta in my family, would you try to have a word with me? No. But if I tell you that I have over 600,000 followers on Instagram and over 1 million on Facebook, yeah, check me out, you'd probably reply to my WhatsApp. I reckon you would. Because we people nowadays fall prey to being impressed by social media numbers, which is deeply vexing. As a society, we are constantly feeling the need to be seen by massive amounts of people. We are constantly growing more and more dependent on instant gratification. And in order to feel included, we are forced to post, gram, snap, tweet, upload, pin, check in, swipe, like, share, react or message. Our real human connections are being replaced by virtual relationships. Because for the most part, we are spending huge... Best of luck, Dolly. नमस्कार, मैं डॉली विश्वकर्मा। कथित कथन सोशल मीडिया मानव संपर्क की गुणवत्ता को नष्ट कर रहा है का समर्थन करती हूँ एवं अपना तर्क पेश करने जा रही हूँ। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी दो पक्ष हैं। इसमें कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है। सोशल मीडिया हमें अपनों से दूर कर देता है। हमारे पास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को हटाकर वक्त ही नहीं होता कि हम अपने परिवार के साथ बैठें, अपना सुख दुख बांटें। और जब समय होता भी है तो हम ऑनलाइन होते हैं। लोगों के लिए सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया ज़्यादा जरूरी है इस वास्तविक दुनिया से।
लोगों को अपने परिवार से ज्यादा जरूरी वह लोग हैं जिनको वह जानते भी नहीं हैं। सोशल मीडिया दुनिया भर के अजनबियों को जोड़ता है और कहीं ना कहीं अपनों को दूर कर देता है। लोगों का ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया हमें खुश कर सकता है, हमारे जीवन को आसान बना सकता है, मगर दुनिया में कोई भी चीज हमारे लिए वह खुशी नहीं ला सकती जो हमें अपने परिवार के साथ मिलती है। इतना समय हम सोशल मीडिया में नष्ट करते हैं, इसके लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नशे की लत के समान हो गया है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल सा होता जा रहा है। सोशल मीडिया का प्रभाव कुछ ऐसा है कि लोग साथ रहकर भी साथ नहीं होते, क्योंकि उनको अपने सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में ज्यादा अच्छा लगता है। सोशल मीडिया हमारे जीवन को और जटिल सा बनाता जा रहा है, जो कि बहुत बुरा है। सोशल मीडिया में एक क्लिक करके हम दुनिया भर से जुड़ जाते हैं, मगर उसी एक क्लिक से हम अपनों से टूट जाते हैं। सोशल मीडिया ने हमें मतलबी बना दिया है। हम अपने बारे में ज्यादा और दूसरों के बारे में कम सोचने लगे हैं। सोशल मीडिया अपनों के बारे में हमें हटा देता है और उन अपने फॉलोअर्स, अपनी फोटोज पर लाइक्स और कमेंट की चिंता करना ज्यादा सिखा देता है। सोशल मीडिया हमें बेफालतू का स्ट्रेस देता है कि हम अपने आप को सोसाइटी में कैसे दिखाएं। सोशल मीडिया बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, विद्यार्थियों के लिए एवं कामकाजी लोगों के लिए भी। सोशल मीडिया हमें बर्बाद सा करता जा रहा है। मेरा ये सब कहने का तर्क ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सोशल मीडिया को बहिष्कार कर देना चाहिए, मगर हाँ, हमें इसका इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। संदर्भ में सोशल मीडिया डिस्ट्रॉइंग आवर इंटीग्रिटी, मैं इस संदर्भ में अपने पेश को स्तर करने जा रहा हूँ। पहले आप लोग जान लेते हैं सोशल मीडिया होता क्या है। ये एक ऐसा समंदर है, आप जितना इसके अंदर जाएंगे वैसे आपको उतनी गहराई का पता चलेगा। इसका कोई और छोर नहीं है। आप जितना अंदर जाएंगे आपको यहाँ पे ना आगे कुछ मिलेगा ना पीछे मिलेगा। सोशल मीडिया में क्या होता है, लोग अपने अपने शेयर्स, व्यूज सब उसमें शेयर करते हैं, लेकिन इसके भी जैसे हमारे मित्र डॉली ने कहा, इसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। हम अच्छाई पे बात कर लेते हैं। अच्छाई, हम अपने से कई लोगों से दूर भी होते हैं, कई हमारे पास होते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा ट्रेंड है जो हमें अपनों से दूर भी रखता है और कई को दूरों को पास भी लाता है। अब हमारा एक मित्र जैसे कि लंदन में रहता है, हमारा कोई उससे कनेक्शन नहीं है, बट सोशल मीडिया हमें उस तक पहुंचाने की पूरी एक दूसरे को जोड़ता है। उसी प्रकार अगर हम उसके अगेंस्ट में बात करें तो उसमें हम जितने अपने पास भी हैं उतने लोगों से दूर भी होते जा रहे हैं। हम लोग अपने घर वालों से कम चर्चित रहते हैं, बट अपने जो सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं उनसे ज़्यादा हम लोग बातचीत करते हैं। मेरा कुल मिलाकर संदर्भ यही है कि हम लोग जितनी जरूरत हो उतना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। All the best, Anshli. Hello. Now the companion can be found by scrolling up and down, swiping right and left. The hands of newly couples seem pretty to our eyes. Alas, we heard the divorce update about the same couples after some time. One is so hilarious in Instagram with his chit-chat followers. But wait and just have a look and go closely. Off screen, he's the one who is so lonely. A warm good morning to all. Myself Anshli Goswami and I'm in favor of this topic. So before moving ahead, I want to mention that please don't misunderstand me with saying social media as digital media. Because sorry, I'm not found certainly a single thing that makes social media social at all. Second, I'm not fanatically opposing internet as whole. Rather, the key issue is about how social media is ruining the social interactions among us. So, my motion got changed with such. A very good morning, distinguished jury members.
honorable guests, respected teachers, and my dear friends. My name is Raina Wahaj, and I vehemently stand against the motion for the topic, social media is destroying quality of human and social interaction. In the word of Saint Godin, how can you squander even one more day, taking advantage of the greatest shifts of our generation? How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable? Social media isn't about networking. Social media isn't about websites. It is about experiences. All one needs is a device, a network connection, and a bright spark of initiative and creativity to join the economy. We have been wondering that for time, we wonder about friends we've met along the way and we think what they are doing. Social media is a thing which we can use to maintain our connections. I remember my mother joining Facebook a few years back, and the joy on her face when she found her 14-year-old friend back on Facebook. And I cannot deny the fact that it is सोशल मीडिया बन गया एक मिथ्या संसार जिसमें बढ़ता जा रहा सूचना का भंडार। सच और झूठ से नहीं रहा कोई वास्ता, सबकी अपनी अपनी मंजिल, सबका अपना अपना रास्ता। मैं आदर्श दीक्षित आज सदन की राय से पूर्णतः सहमत होते हुए वक्ता पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। हमारा आज का विषय सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एंड सोशल इंटरैक्शंस, अर्थात सोशल मीडिया मानवीय एवं सामाजिक संवाद की गुणवत्ता बिगाड़ रहा है। यह पूर्णतः सत्य है और मैं इसका समर्थन करता हूं। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार सोशल मीडिया ने हमारे तीनों ही प्रकार के संबंधों की गुणवत्ता बिगाड़ी है। संबंध तीन प्रकार के हो सकते हैं, हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध, हमारे सामाजिक संबंध और हमारे पारिवारिक संबंध। अगर हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक तथ्य पर या मेरे अपने मनोवैज्ञानिक अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हम किसी के समक्ष बैठकर उसके बारे में अनुचित शब्दों का प्रयोग करने से पहले जितना रुकते हैं उतना परोक्ष रूप से सोशल मीडिया पर प्रयोग करने के पहले नहीं रुकते हैं। यही कारण है कि चाइना के प्रेसिडेंट हो या यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप जी, वो भारत के बारे में जिस प्रकार की शब्दावली प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पर, वैसी शब्दावली हाउडी मोदी के कार्यक्रम में या मामलापुरम समिट में नहीं प्रयोग कर पाते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक संबंधों की तो हाल ही में हमने देखा सीएए या एनआरसी के विरोध पर हम सभी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और हमें मालूम है कि सीएए में भारतीय मुसलमान के लिए किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है और भारत का नागरिक भारत का ही नागरिक रहने वाला है। उसके बावजूद सोशल मीडिया पर मिथ्या संचार करके, झूठों को फैला करके किस प्रकार से भारत में अराजकता फैलाई गई है, ये हमसे आपसे छिपा नहीं है। माफ कीजिएगा। अगर मैं पारिवारिक संबंधों की बात करूं तो पारिवारिक संबंधों में अभी मैंने हम सभी ने कुछ समय पहले दीपावली का कार्यक्रम मनाया, फिर नव वर्ष आया और 14 जनवरी को हमारा मकर संक्रांति का कार्यक्रम था। पहले हम कार्यक्रमों में, त्योहारों में एक दूसरे के घर जाते थे, नव वर्ष पर ग्रीटिंग कार्ड देते थे, दीपावली पर मिठाई देते थे। आज दीपावली पर व्हाट्सएप पर 2 लड्डू की फोटो आ जाती है और नव वर्ष पर ग्रीटिंग कार्ड आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि हमारा वही भावनात्मक लगाव इन ग्रीटिंग्स के साथ है जो प्रत्यक्ष रूप से जब हमारे प्रियजन आते थे तब होता था। तो इस प्रकार सोशल मीडिया ने हमारे तीनों ही संबंधों को ध्वस्त किया है। अब अगर मैं बात करूं कि हम इसे किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया को जो बनाने का पर्पस था उसको कहां तक हम सार्थक कर पाए हैं, तो यह व्यर्थ होगा। हम सभी इस बात को ठीक से समझते हैं। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि लौट कर बीती घड़ी वापस कभी आनी नहीं, लौट कर बीती घड़ी वापस कभी आनी नहीं, जो गंवाए वक्त को वह मूड है ज्ञानी नहीं,
ढोल ही पीटे हैं हमने पुरखों के अपने सदा, सीख उनकी एक भी हमने कभी मानी नहीं, क्यों बहाने पर तुला है संबंधों को तू अपने इन सोशल मीडिया के चक्कर में। क्यों बहाने पर तुला है अपने संबंधों को इस सोशल मीडिया के चक्कर में। संबंध तेरे हो या मेरे, संबंध है पानी नहीं, संबंध है पानी नहीं। दिया बुझे तो दो, सवाओं को देने से पहले कभी बाती तेल भी संभाल लिया करो। सूरज की गर्मी को कोसने के बजाय एक छाता सर पे तान लिया करो। हर बात में कमियां खोजने वालों कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों और महाविभूतियों को मैं ब्रह्मानंद प्रणाम करता हूँ। मैं विपक्ष में अपने मत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया ने मानवीय संवाद की गुणवत्ता को नहीं बिगाड़ा है। मैं पूर्णतः स्पष्ट कर दूं, हमारे संस्कार ने मानवीय संवाद की गुणवत्ता को बेकार किया है। अगर सब्जी काटने वाली चक्कू से, पहले मैं जवाब दे दूं, अगर सब्जी काटने वाली चक्कू से किसी का नाक और गला काटा जाए तो गलती चक्कू की नहीं, हमारी और आपकी विकृत मानसिकता की है। हमें मानसिकता बदलनी है। दूसरे तथ्य पर, अगर मान लिया सोशल मीडिया में कुछ कमियां हैं, कमियां अगर पेड़ में काटे हैं तो काटे काटे जाए, पेड़ नहीं, क्योंकि आवश्यकता समाधान की है, सर्वनाश की नहीं। स्पष्ट कर दूं, सबने बहुत बताया सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया किसी व्याख्यान का मोहताज नहीं है। सबने बहुत बताया सोशल मीडिया शब्द का प्रयोग पहली बार 2004 में हुआ। ओमीडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया हमें उन आवश्यकताओं तक पहुंचाती है जिन्हें हमें जरूरत है। अब फिर से वही बात, हमारी आवश्यकताएं अगर अच्छी होंगी, हमारी सोच अगर अच्छी होगी तो हम अच्छी जगह जाएंगे, यूट्यूब पर क्लासरूम सर्च करेंगे, नहीं तो फिर टिकटॉक पे जाएंगे। एक छोटी सी कहावत है, छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हमको सोच बदलनी पड़ेगी। अगर हमने सोच बदल लिया तो फिर सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी रहेगी। विलियम शेक्सपियर ने भी यही कहा, देयर इज नथिंग इज गुड और बैड बट आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब मैं बता दूं सोशल मीडिया किस तरीके से संवाद की गुणवत्ता को अच्छा कर रहा है। हम यूपी वाले, हम तमिल भाषा नहीं जानते, एक तमिल का वो यूपी वाली भाषा नहीं जानता। गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हम आसानी से बात कर सकते हैं। अब आप बताइए, सोशल मीडिया ने मानवीय संवाद की गुणवत्ता को अच्छा किया कि बेकार? अब हम पढ़े लिखे ना हो तो संवाद का प्रश्न ही नहीं है, फिर तो विवाद ही होगा। क्योंकि सब लोगों में संवाद होता है, मूर्खों में विवाद होता है, फिर वो विवाद होगा। दूसरे नंबर पर, एक फौजी पहले बॉर्डर पे ड्यूटी देता था, पिताजी की तरह ही हो जाती थी, पता नहीं चलता था, बाद में घर आता था। लेकिन आज करवा चौथ जैसे त्योहार बीबी बड़ी आसानी से मनाती है और कहती है ठीक है आप ड्यूटी पर फोकस करिए, ऐसा लगता आप मेरे पास है। अब आप बताइए सोशल मीडिया कहां तक समाज की गुणवत्ता को अच्छा कर रहा है? दूसरे नंबर पर सोशल मीडिया लोगों ने कहा समाज की गुणवत्ता को बहुत बेकार कर रहा है। अरे हमारे संस्कार बेकार हो रहे हैं। पहले हम अपने टीचरों के सामने बैठते नहीं थे, आज बच्चे टीचर के बगल में बैठ के फोन में दिखाया करते हैं, पढ़ाया करते हैं। ये गलत है। हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमको अपना थिंकिंग बदलना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। नजर ना बदल सके ठीक, लेकिन हमको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। हमको आवश्यकता है सोशल मीडिया में क्या क्या कमियां उसको दूर करना है। बार बार वही बात आएगी, हमारी सोच जितनी अच्छी होगी हम उतनी अच्छी जगह जाएंगे। एक बच्चा गांव का है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यूट्यूब के जरिए फ्री में पा लेता है। 600 रुपए में 3 महीने नेट पे करके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख लिया, प्रैक्टिस किया, इंग्लिश बोलनी आ गई, अब बोल रहा है। अब ये संवाद की गुणवत्ता अच्छी हो रही है। और अगर हमारे पास ऐसे थिंकिंग नहीं है, हमारी सोच बेकार है, तो हम टिकटॉक करेंगे, फिर हम फेसबुक पे लोग लाइक कमेंट करेंगे, बस इसी में जिंदगी सत्यानाश। जाते जाते एक चीज कह दूं, एक कहावत कही चाणक्य ने, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। और गाली के शब्दों में 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद विराम दूंगा, समय की कमी है। कि उम्र भर गालिब गलती यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। Quality interactions are harder these days because conversations have become texting, arguments have become phone calls, and feelings have become status updates. Good morning, respected judges. Today, I, Rupal Shrivastava, stand here strongly and vehemently against the motion that is, social media is destroying the quality of human and social interactions. We humans are social creatures and are known for our communication skills. Professor Albert from University of California found that 58%
of our interaction happens through our body language. 35% of interaction is through our vocal tone, and just a mere 7% of our interaction is through the content of the message. So why do interact with just that 7% in comparison to a full expressive potential? Would you ever run a marathon using just 7% of your physical strength? I really don't think so. A text lacks emotion and the tone, which is the power of quality interaction. One's text may be misinterpreted and it may lead to misunderstandings between the individuals. All these things are not really happening good for the mankind. A smiling emoji is cute, but it can never replace the ear-splitting grin and the smiling eyes of your friend. Interviews on Skype are trending these days. But do you really think that the caliber and personality of the candidate be judged on that basis completely? No. After that, if we look onto the social media interaction, निर्णायक मंडल, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं अद्वितीय तिवारी सोशल मीडिया सामाजिक और मानवीय संवाद की गुणवत्ता को बिगाड़ रहा है कि विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया केवल हमारा चेहरा दिखाने मात्र का साधन ही नहीं रह गया है, बल्कि वो सामाजिक सोच, सामाजिक कुंठताओं और धार्मिक विचारों पर अपने विचारों को रखने का भी एक अमूल्य साधन है। आज दुनिया का हर छठवां व्यक्ति सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। सोशल मीडिया ने आज हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ रखा है और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए हम कितने पहलुओं पे समाज से जुड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं कि कभी सोशल मीडिया जैसे किसी जगह पर कोई अमान्य घटना घटित होती है तो उसको हम रिकॉर्ड कर देश के हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उस घटना के दोषियों को सजा दिलाने में सहायता प्राप्त होती है। दूसरा ये है कि जो महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जिन्हें कोई रोजगार प्राप्त नहीं था, वो सोशल मीडिया के जरिए ऐसी महिलाओं से जुड़ी जो खुद तो एक प्रतिष्ठित स्थान पर है ही है और हजारों लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रही है, जिससे कि उनमें खुद का कुछ नया व्यापार करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने उसको शुरू किया और उसका विस्तार किया। कोरोना वायरस जो आज हम देख रहे हैं बहुत बड़ी बीमारी के I agree that using social media can be a risk. But as Mark Zuckerberg said, that the biggest risk is not taking any risk. A very good morning to all the honorable jury members, distinguished guests, respected teachers, and of course my worthy opponents. I am here to speak against the motion that social media is destroying the quality of human or social interactions. Do you know what? Every day around more than 1 billion people connect with each other using social media. The world seems to be a smaller place. When we look at the positive aspects of social media, we find numerous advantages. The most important being a great device for education. All the information one requires is just a click away. You know what? About 5.9% of the schools claim that the students use social networking sites for educational purposes. Furthermore, as more and more people are distancing themselves from newspapers, they are depending on social media for news. So you are updated on the latest happenings of the world through it. In addition, it also provides a great platform to young building artists who wish to showcase their talent for free. And it is also very, very helpful for those who are physically disabled but want to support their family needs. So some of them can earn by creating their own channel on YouTube. Another advantage definitely benefits companies who wish to promote their brands. Nowadays, social media has become a hub for advertising. You live the present moment every time you check your phone. A very good morning to respected jury members, distinguished guests, and my worthy opponents. Welcome to this debate. Today, myself Vanchika Bhatti stand in front of you to exhibit my views on social media is destroying the quality of human interaction.
I, as a second speaker, will be talking for the motion and strongly support it. Social media has become an important part of this universe. It provides us a platform to connect with 263 countries across the globe. Now, it has become an oxygen for the long life of globalization. In 1971, Raymond Samuel was internationally known for his invention of email. Google was born in 1998. Mr. Lee was the creator of WWW, World Wide Web. We all are living in this tech era. About 75% of people spend their valuable time on gadgets and do nothing. So friends, are you all addicted to social media like honeybees to the flower? In my opinion, yes, we all are. According to me, social media is a carnival of distractions. It has a lot of interaction. People come to this platform for their outer satisfaction. Everyone in this era is busy in portraying their different and fake images of themselves. For younger audience, the massive use of platforms such as Facebook, Snapchat, Instagram is associated with a feeling of social isolation. Today, we are so trapped in this hustle and bustle that we don't get a time to interact with our families. In this fast-moving waves of technology, India's precious perfumes of tradition, ritual and customs are fading. We are just getting alienated. A global village. Distances no longer a rift, and unapproachable a myth. Well, this is how social media has bestowed all of us sitting in this auditorium today. A very euphoric morning to one and all present here. Today I, Shreya, stand on this pedestal to fervently oppose the motion that social media destroys the quality of human interactions. Well, let me ask you a question. How many of you are still in contact with your distant high school friends? A lot many of you must have been. Do we meet them in person? Obviously not. It is social media that helps bridge the rift caused by distance or time and actually makes people more close-knit to each other. A number of my worthy opponents have highlighted the fact that social media actually distracts youngsters. But let me ask you all, is it so? In a young nation like ours, where more than 60% of the populace lies below the working age, we may just end up as a dull and grey demographic disaster if we do not tap the talent of the youth and do not give them access and exposure to the world outside. This is where social media plays a more vital role than ever. It helps youngsters like me and you to raise up to platforms like this and express ourselves. This is through social media that helps us to break off all shackles related to discrimination of caste, creed, color, religion, race, sex, or even social or economic backgrounds. When we interact with people on social media, do we look to their backgrounds? No. But yes, we do that in person. Coming to a point that social media has enabled a very important cause of hashtag activism that's worthless? No, that's not. Let me underline the fact that this very hashtag activism has actually enabled root causes of the world of global importance such as Greta's climate change campaign or Amazon fires to be raised up to platforms such as the World Economic Forum and the United Nations. It is this very I have thousands of friends, yet I'm lonely. I speak to each one of them, yet no one really knows me. Smartphones and dumb people, it's the screens we open and the doors we shut. A very good afternoon to each and everyone present here. I stand firmly concerted for the motion. Humongous competition, more conflict, zero cooperation and minimal accommodation is what social media has served on our plates in terms of social and human interactions. Our conversations start with hey, and those shortened abbreviations, you just don't have to worry about your body language, pitch of your voice, emotions, and whom are you talking to? Is this why sociology says us social beings?
The baggage of social media is so much on our heads that the alone time that was once occupied by fun with family, friends, teachers, gatherings in schools, colleges, has been taken over by social media apps. We share our stories on Instagram, Facebook, everywhere, back to back, but we fail to have that bond with our teachers, elders, and parents who are an indispensable part of our lives. Is it very true to do this? Let's admit it today that we are losing the touch. And I really wonder what kind of a generation will we be in terms of our social interactions, experiences, and communication. FOMO, the fear of missing out, is so much that we miss our beautiful interpersonal relationships. It's not these sweet stories of great parents that make us go to sleep, but the notifications. Out with family, friends, but heads down on screens. Sharing the best, the promotion, the high self-image, but what we miss. Good morning to everyone present here. My name is Varun Sharma and I'll be speaking for the topic. Social media. I agree that it helps us to communicate, to reach boundaries, but however, it doesn't help us to say what we actually mean. People usually get nervous when they talk. As you can all see, I'm very nervous right now because I lack human interaction, and that's why I'm trying to do this. Social media, I agree, helps us to help people to talk to one another, but at the same time, it also... Social media is not a medium. It is the key to learn, to engage and build relationships. Good morning to everyone present here. I, Priyanka Paliwal, here is to represent my view against the topic that social media is destroying the quality of social interaction. Whenever I think of social media, the first name comes to my mind is Facebook, and I think yours too. I also thought that what Mark Zuckerberg thought of while creating Facebook. One of his interviews, he mentioned that the main objective to create the Facebook was to form the community of people where they can interact, where they can share their thoughts, ideas, and many more. So we can say that social media was made for the social interaction. It's just that nowadays it is not limited to just a few people interaction. Rather, it has provided a platform for wide social interaction. I am remembering the words of Ben Grossman. He says that new marketing is about to build relationships, not media. And is it so? Because the social media plays a crucial role in business and marketing. Many companies, people promote their business using social media and make their business profitable and recognizable. I also remember the word of Andy Credistrino. He said that when we say it, it's marketing. When they say it, it's social proof. There are many companies which use social sites for promoting their business. I think you all are aware of Flipkart, and many of you have done the shopping from them too. We can see their fan. मंचासीन सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर नमन। मैं रिया जायसवाल आज आप सभी के समक्ष वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय सोशल मीडिया मानवीय सामाजिक संवाद की गुणवत्ता बिगाड़ रहा है, इस विषय के पक्ष पर अपने विचार इस सदन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का युग आधुनिकता का युग है। आज प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही आधुनिक और प्रैक्टिकल हो गया है। आज के युग में अगर सोशल मीडिया के दौर में देखें तो आप सब जानते हैं आज के समय में पिज्जा एम्बुलेंस से फास्ट पहुंचता है। डिस्को, फास्ट फूड, 8 GB का आईपैड एंड सीरीज का मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, जूते, मोजे आधुनिकता की पहचान बन गए हैं। आज के बच्चे मोबाइल में पबजी खेलेंगे पर लट्टू या गुल्ली डंडा नहीं। जी हाँ, सोशल मीडिया के दौर में जगह जगह से फटे कपड़े फैशन का पर्याय बन गए हैं। बड़ों को प्रणाम करना डाउन मार्केट हो गया है। आज ऊपरी दिखावा ही सब कुछ है। ठीक है, जमाने के साथ कदम मिलाना अच्छी बात है, लेकिन कदम मिलाते समय देख लेना चाहिए कि कदम कहीं बहक ना जाए। आज के समय में कुछ बातें अच्छी भी हैं। आज का युवा बहुत ही प्रैक्टिकल है, सकारात्मक है, आगे बढ़ने की इच्छा है, किंतु सोच मर्यादित नहीं है। जी हाँ, आज के दौर में सोशल मीडिया के दौर में देखें तो आज के लाइफस्टाइल को देखकर लगता है भारत में अमेरिका उतर आया है।
सर से पांव तक आधुनिकता की होड़ लगी है। नैतिकता की बातें विस्मित हो चुकी हैं या रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई हैं। अश्लील क्या होता है? कुछ नहीं, संस्कार की बातें गतियां उसी सी लगने लगी हैं। एक दूसरे को लांग कर आगे निकल जाने की ऐसी होड़ लगी है कि बढ़ती कामनाओं के बीच भावनाएं दब गई हैं। लोगों के जीने के निजी विचार हो गए हैं। अपना घेरा, इसमें औरों का कोई स्थान नहीं। जहां कल तक संबंधों की गरिमा हुआ करती थी, आज के संदर्भ में उसका कोई स्थान नहीं है। अरे जिस हिंदी पर हमको नाज था, वो पिछड़े लोगों की भाषा बनती जा रही है। श्रेष्ठता, आदर, सम्मान 10 की नहीं हर एक की हमराज हूँ। बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं, इस देश की आवाज हूँ, इस देश की आवाज हूँ। नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया को धीमा जहर वे विकृतियों का विराट रूप बताने वालों, सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का संगीन आरोप लगाने वालों, फेसबुक के बिना आपकी सुबह नहीं होती, व्हाट्सएप के बिना आपकी दाल नहीं गलती, ईमेल के बिना आपका हाजमा खराब रहता है, पेटीएम के बिना घर पर नमक नहीं आता। सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पर आते रहने वालों, उसी की उपादेयता पर सवाल उठाने का दुस्साहस करते हो। सोशल मीडिया ने कभी भ्रष्टाचारियों के गले की फांस बनकर, कभी अबलाओं की तीक्ष्ण आवाज बनकर, कभी तानाशाह नौकरशाह की नकेल बनकर, कभी वहशी दरिंदों के खिलाफ दामनल बनकर समाज की कुरीतियों व कुप्रथाओं पर कुठाराघात किया है। किसी भी देश की उन्नति व प्रगति में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज सोशल मीडिया की ताकत के सामने बड़े से बड़ा राजनेता, उद्योगपति आज सभी सिर झुकाते हैं। सोशल मीडिया का जन जागरण में भी बहुत योगदान है। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना, बाल मजदूरी पर रोक लगाना, धूम्रपान के खतरों से अवगत कराना, नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सोशल मीडिया की भूमिका सराहनीय है। आजकल यूट्यूब पर शिक्षा एवं ज्ञान के लिए अनेक प्रकार के ज्ञान। All the best, Ariba. Thank you. Yes, you may start. तनिक स्वार्थ के लिए है तुम क्यों आनंद बीज बोते हो, तनिक स्वार्थ के लिए है तुम आनंद बीज बोते हो। बीत चुका है बहुत कुछ, जो बचा है उसे क्यों खोते हो। सदियों से बेखबर अपने किए से आज भी तुम जो सोओगे, सदियों से किए अपने बेखबर से आज भी तुम जो सोओगे। धिक्कारेगा ये विष, तुम छुप छुप कर रोओगे। बेरे हैं कान तुम्हारे तो ये याद दिलाने आई हूँ, मैं घायल भारत की तस्वीर दिखाने आई हूँ। A very good morning to all respected teachers and my all dear colleagues. आज हम यहाँ सभी डिबेट कंपटीशन में उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि सोशल मीडिया मानवीय गुणवत्ता को बिगाड़ रहा है। मैं अरीवा, 33 वर्ष की छात्रा, इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सोशल मीडिया का अगर हम वर्तमान फैशन देखें तो इसमें सोशल यानी सामाजिक शब्द का प्रतिबिंब तो हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। जहां देखो वहां सिर्फ वायलेंस, एनिमिटी, डिस्टर्बेंस, ऑब्सेनिटी यही सब दिखाई देती है। ये देखकर हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर एक वैचारिक दरिद्र की क्रांति सी आ गई है और ये हमारे युवा के भविष्य को नकारात्मक दिशा देता है। अगर हम बात करें, लोगों का कहना है, लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया बहुत यूजफुल है। मैं मानती हूँ सोशल मीडिया यूजफुल है, इतनी यूजफुल है कि आज अगर कभी यहाँ बाहर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसको आसपास के हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाते हैं। पता है क्या करते हैं? अपना मोबाइल निकालते हैं, उसकी फोटो क्लिक करते हैं और उसको व्हाट्सएप और एफबी पे डालते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक लाइक मिल सके। उसको वो इंजर्ड पर्सन की कोई रेट नहीं है, बस उसको अधिक से अधिक लाइक जाना है। अगर हम बात करें आज की सेंचुरी 21st सेंचुरी है, जिसे हम कहते हैं कि ये डेवलप एरा है। यहाँ लोग सुबह उठकर अपने पेरेंट्स के पांव छूना याद नहीं करते हैं, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना याद नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर याद रहता है कि उनको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक खोल करके अपने मैसेज चेक करना है। ये है हमारा विकसित युग, हमारा आज का युग। आज लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। वो सोशल मीडिया। सुप्रभात आदरणीय महोदय, मैं अपने विचारों को विषय के विपक्ष में रखते हुए कहना चाहती हूँ। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए संवाद बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
सोशल मीडिया संवाद की गुणवत्ता बिगाड़ नहीं रहा बल्कि संवाद सहायक बना हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचारों को सीधे साझा कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। परंतु आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवीय गुणवत्ता के लिए सोशल मीडिया को नकारा जाए, ये संभव नहीं। परंतु आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया को मानवीय गुणवत्ता के नकारा जाए, वहां सोशल मीडिया जनमानस की सशक्त चेतना को जागृत करने वाली प्राणवायु बन रही है। आज विभाजित राजनीति के उपासक बन बैठे नेता और लेखनी की मर्यादा भूले पत्रकार मात्र अपने चरमछूत स्वार्थों सिद्ध करने में संलग्न है। ऐसे समय उन पर अंकुश लगाने का ध्रुव कार्य करने में सोशल मीडिया को चौथा स्तंभ भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर महोदय, ब्रह्म से लेकर ब्रह्मांड तक, मंत्रणा से लेकर मनोरंजन तक और राजनीति से लेकर आपबीती तक सोशल मीडिया सिर्फ न सिर्फ मुझको समाचारों ज्ञात करा रहा है बल्कि आपको भी। महोदय, परंतु मेरे विपक्षी मित्र अपने तर्कों के तीर खींच रहे थे। उनकी स्थिति तो उस प्रकार है जो आतुरता के चलते सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही हलाल कर देने को कहते हैं। कहने का आशय है चंद असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई गई गलतफहमी से भयभीत होकर। Mudita, I'm so very sorry. All the very best, Mudita. ज्ञान के अधिष्ठात्री मां सरस्वती, ज्ञान की आभा से मंडित वीर शीर विवेक, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं यहाँ पर उपस्थित प्रतिभागी। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है सोशल मीडिया मानवीय सामाजिक संवाद की गुणवत्ता बिगाड़ रहा है। इस विषय के पक्ष में अपने विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करें तो ये पंक्तियां सोशल मीडिया के माध्यम से गुणवत्ताहीन होते जा रहे मानवीय तथा सामाजिक संवाद की ओर इशारा करती हैं। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में दो समुदायों के बीच हिंसा की खबरें आई और जांच में हिंसा का मूल कारण सोशल मीडिया को बताया गया। उसके बाद अलीगढ़, शाहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ में भी सांप्रदायिक तनाव की लगातार खबरें आती रहीं और इसका कारण भी सोशल मीडिया ही था। अंततः सरकार को धारा 144 के साथ ही इंटरनेट प्रतिबंध जैसा कदम उठाना पड़ा ताकि हिंसा, आगजनी तथा वैमनस्य के वातावरण को शांत किया जा सके। महोदय, सोशल मीडिया ने हाल के वर्षों में हमारे सामाजिक एवं मानवीय संवाद को जिस प्रकार से कटुतापूर्ण तथा गुणवत्ताहीन बनाया है, ये समस्त घटनाएं उसी की बानगी हैं। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे लाइन से लिखी गई अभद्र टिप्पणियां और किशोर नवयुवकों को हिंसा के गर्त की ओर खींचती उत्तेजनापूर्ण भाषा ने हमारे सौहार्दपूर्ण सामाजिक संवाद को समाप्त ही कर दिया है। इन घातक वृत्तियों के अतिरिक्त सोशल मीडिया ने महिला सुरक्षा में सेंध लगाते हुए महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में बड़ी वृद्धि की है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी महिला। Wonderful. So the next participant from group L is going to be Gauri Paroha. I really hope I'm pronouncing your name correctly, Gauri. Okay, thank you so much and all the very best. We live in a world where we are not just consumers of information, but creators as well. And as we approach the end of the second decade of the century, blaming social media for the unrest is just like blaming the pamphlets for the French Revolution. Good morning to one and all. Today I, Gauri Paroha, would be standing against the motion. None of us here, yes, none of us here present are oblivious to the fact that social media has played a very important role during natural disasters. It has helped people to be evacuated during natural disasters, helped them connect to the volunteer organizations. The very role of social media as a potent tool was evident in the Kerala flood of 2018, my friends. Another factor today is that social media
Social media is responsible for the violent and aggressive society of 2020. It is true that social media was used to garner a man who burnt a Muslim man alive on video in Rajasthan, but it is the same social media that helped to raise funds for a family whose daughter was raped and murdered in Kathua, Jammu Kashmir. Just because it is a new element in an old equation, it does not mean that we blame social media today. Back then, printing press was considered as a troublemaker by the Ottoman Empire. Press was considered as suspicion because it was used, it was at the speed at which books were printed. But what were books? Books were medium, and so is social media. It is a medium. So banning books and blaming social media is just like the same skewed logic, my friends. With this, I rest my case. Thank you, and have a wonderful day ahead. A wonderful presentation, Gauri. The next college code is going to be code N, and the first participant from college code N is going to be Aditi Seth. All the very best, Aditi. सबसे पहले तो मुख्य अतिथि अध्यापकगण एवं समस्त छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हालांकि इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है काफ़ी, और मैं इसके पक्ष में बोलना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले जो हमारे माननीय जागरण के संस्थापक रहे श्री गुप्त जी, उनका मेरे लिए प्रति बड़ा आदर रहा है, और मैं आप सबको सम्मिलित करते हुए कुछ पंक्तियां इनके नाम और अपने भारत के नाम देना चाहूंगी। तो मैं आप सबको सम्मिलित करते हुए पंक्तियां शुरू करती हूँ। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवान, हे प्रतिपालक दया सिंधु, सच्चिदानंद खट खट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे प्रतिपालक दया सिंधु। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलन कदा रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बाल का विदुषी हो, हर एक बाल का विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, माँ का धानी परिधान। मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ ना खड़े हुए, जो मेरे खुशी में सपोर्ट न करे, मुझे सिर्फ उसे एक दोस्त की जरूरत है जो मेरे बुरे वक्त में मुझसे ज्यादा दुखी हो, मेरे साथ है, और वो मुझे मेरे चांद मिले हैं। अभी कुछ समय पहले भैया आए थे, बहुत अच्छा उन्होंने बोला था, कहते कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। सोशल मीडिया का अच्छा यूज बुरा यूज होता है मानते हैं, सोच बदलनी चाहिए, आईना को साफ नहीं करना चाहिए, अपनी आंखों को साफ करना चाहिए, बहुत अच्छा बोला था। खैर भैया, मुझे उस चीज का एक मिला है कि हर तरीके के सोच हर युग में हुए। द्वापर में भी हर तरीके सोच वाले लोग थे, इसलिए महाभारत रची गई। त्रेता में भी हर तरीके के सोच वाले लोग थे, इसलिए रामायण भी हुई। सोच बदले, देश बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, पर हमें अपनी सभ्यता से भी नहीं हटना चाहिए। आज Judges. So the next participant from group N is going to be Vipul Tripathi. सबसे पहले इस आयोजन सभा में पधारे हुए मुख्य अतिथि, अन्य अतिथि, इस आयोजन सभा को संपन्न कराने वाली समिति, उसके मेंबर्स और हमारे मेजबान सर, मैं इन और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबका तहे दिल से अभिवादन करता हूं। सर्वप्रथम
ये वाद विवाद प्रतियोगिता है और इसमें मैंने पाया कि लोगों ने, प्रतिद्वंदियों ने अपने विचार रखे, सोशल मीडिया की अच्छाइयां और बुराइयां बताई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भटक गए, जबकि टॉपिक ये था कि सोशल मीडिया मानवीय सामाजिक संवाद की गुणवत्ता बिगाड़ रहा है। गुणवत्ता बिगाड़ रहा है, उसकी जगह पर सभी सोशल मीडिया की अच्छाइयां या बुराइयां ही गिनाते रहे। कुछ लोगों ने टॉपिक पे पर्टिकुलर बोला, तो सबसे पहले मैं उन सभी का जवाब देना चाहूंगा और मैं इस टॉपिक के विपक्ष में बोलूंगा कि ऐसा कतई नहीं है कि सोशल मीडिया मानवीय या सामाजिक संवाद की गुणवत्ता को बिगाड़ रहा है, क्योंकि जब सोशल मीडिया नहीं था लोग तब भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते थे। मुझे याद है जब से मैंने अपनी याददाश्त संभाली, मेरा बचपन, लोग तब भी छोटी मोटी बातों पर एक दूसरे से अभद्र भाषा में बात करने लगते थे, और आज इतने सालों के बाद जब सोशल मीडिया है, तब नहीं था, आज भी वो उसी प्रकार से बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया ने संवाद की गुणवत्ता को बिगाड़ा है। और जिन लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं, यानी बहुत से लोग अलग अलग विचारधाराओं को मानते हैं, मतलब मेरा परिप्रेक्ष्य राजनीतिक रूप से है, तो वो वही लोग जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं वो उस गुणवत्ता को बिगाड़ते हैं, और वो ऊपर प्रथम श्रेणी से चलकर चीजें समाज में धीरे धीरे नीचे आती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा Social media is as addictive as alcohol and tobacco. Good morning to everyone present here. Today, I'm Anushka Sharma and I'm all in the motion of the topic that social media is destroying the quality of human and social interaction. Firstly, I would like to oppose my one opponent, Raina Vajana. She said that social media is just not an application and website, but through social media, we get experience also. So I would like to ask her that what type of experience we get through social media? Experience of doing chatting on WhatsApp or making videos and uploading it on TikTok. Secondly, she said that through social media, our respected prime ministers and other cabinet ministers have launched so many programs for people. But I would like to tell her that this is India, my dear, and here there are so many villages where people are illiterate. So how they will get the benefit through social media? And if we will keep illiteracy aside, there are also so many drawbacks like electricity and internet connection problem. Secondly, I would like to define what actually social media means. These are the websites and applications that allow users to create and share their content and also participate in social networking. A study was published online on human behavior shows that around 2 billion people were suffering from obesity, diabetes and other ill health problems because they prefer spending their time on social media rather than working out. We say that through social media we connect to our friends, but is it really? As it is said by Malay Shah that social media creates an illusion of connectivity and not the actual connection. This is Anu Nisal standing before you. In today's debate competition, I wanted to speak against the topic that is, social media is destroying the quality of human or social interaction. Well, to be very honest, I really don't think so, that social media is destroying the quality of human or social interaction. I think that social media increases social interaction. Through social media, you meet with many new friends, you can interact with all over the world. There are many people who belong to a small town or villages. They have lots of talent, but they do not get the platform. But YouTube gives them a big platform for showing their talent. You may have heard about Gulzar Chaniwala, Amit Badara, BB Vines, and worldwide famous Sandeep Maheshwari sir and Sapna Chaudhary ma'am. Do you know, Sapna Chaudhary ma'am has been searched ranked 3 all over the world. She is having this much of fan following only because of social media. For example, you want to become a singer. You just need to record your song, upload it into social website. If you have a true talent, people will definitely like it. And side by side, you can continue with your studies or job also. Now you might have question in your mind that when we listen to our music,
We want to listen it again and again, or we want to listen more music. It distracts us from our studies. So what will be the solution of this problem? Well, we all use electricity. We know that electricity can give a shock also, but still we use it. Why? Because everything in this world is Avyakt Avasthi. All the best, Avyakt. चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है, दिल व्हाट्सएप हुआ जा रहा है। चेहरे पे फेसबुक सी रौनक है, दिल व्हाट्सएप हुआ जा रहा है। अपनों से कटकर भी इंसान सोशल हुआ जा रहा है। नमस्कार, मैं अव्यक्त अवस्थी। सोशल मीडिया सामाजिक संवाद की गुणवत्ता बिगाड़ रहा है, इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि सोशल मीडिया पर हम लोग कितना अपना समय व्यतीत करते हैं? बहुतों का जवाब होगा कि उन्हें नहीं पता। आजकल प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। लोग घंटों बिता देते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते करते। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परंतु किसी चीज का अत्यधिक इस्तेमाल करना उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। हाल ही में एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें यह बताया गया है कि जो लोग अपना स्मार्टफोन बार बार चेक करते हैं रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, वो एक रोग का शिकार भी हो रहे हैं। भारत में 2015 में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 15% थी, जो आज बढ़ के 57% तक हो चुकी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर हम लोग ज्यादा करते हैं तो उससे मानसिक रोग भी हो रहे हैं। अगर हम लोग दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करते हैं तो उससे Last but not the least, the second participant from Group P is Tanushri. All the best, Tanushri. Websites and applications that enable users to share and create content and participate in social media is social media. So, respected panel of jury, honorable dignitaries, and my esteemed opponents. Today I stand here opposing the hot topic just because everything is perceived to be positive unless we take it negative. So, from the ancient time, from Kabutar Ja to Mere phone mein teri photo, from money draft to bhai Paytm karwa de, there is a lot difference. The mode of communication has changed widely. Social media has given us n number of opportunities. It has helped us to develop ourselves having no qualification bar. Like if now a student of class 8 want to show his talent, there won't be any qualification bar. He can use the social media, and since there are n number of advantages, so I'll keep time in my mind and start with the first one, that is connectivity. Not 14 February 1 connectivity, this is social connectivity. Social media has given us many people to connect despite of caste, creed, color, religion, taste, preference, language, races and viruses too. Because if according to my esteemed opponents we go and meet them. अब एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे प्रतिभागियों के लिए भी हो जाएं। And with this, we come to the end of all the performances of today's very interactive, very enthusiastic intercollegiate debate competition. Now the scores are being finalized and the results are being prepared, which I'm sure that all of you are very much excited about, right folks? Okay. But in the meantime, I would like to invite on stage our judge, Bhavya ma'am, to please enlighten us all with your words of wisdom. A huge round of applause for all the speakers for having that courage to speak over here. All of you, it's very good. It's immensely wonderful to see you all at this college level to become good debaters and the speakers for the country. But then, to make you better day by day, we have to learn.
So there are certain points I would like to speak on. I'll not take much of your time. So first thing, there is a difference between debate and discussion. Few speakers here started it to be a little bit of discussion. So there's a huge difference between what debate is and what discussion is. Secondly, the pronunciation of the word the, T-H-E. So it's pronounced as the before the word which begins with a vowel. Yes? Yes. And the when the next word begins with a consonant. Third point, it's jury members. Do you think so? It's jury members? It's members of the jury. It's never jury members. It's members of the jury. The next is, when we are standing at a platform, we need to use a formal language. You cannot use slangs. Some of you spoke. Then, when you're taking a stand, you have to take a stand. Either you have to be this side of the fence or that side of the fence. You cannot just keep jumping at the fence by saying that anything, if exaggerated, goes wrong. Right? Thank you. Thank you so much, ma'am. That really nice. And now, I'd like to invite on stage Dr. Alok Bajpayee. Please motivate us with your words of wisdom and enlightenment. तो यही सब लोग क्या मोटिवेटिंग, but anyway, what I liked, probably I don't know whether you have noticed, all of you, कि 70% जो participants थे वो लड़कियां थी. पार्लियामेंट से लेके शाहीन बाग से लेके घंटा घर से लेके जारा इंस्टीट्यूट तक, अब वो सब ठीक है, खुल गया झंडा. तो लड़कों, इन लोगों को जरा मैच करना पड़ेगा. दूसरी बात जो उन्होंने कही थी ऑलरेडी कि डिबेट और ये, सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया होता क्या, बोल तो गए सब लोग यहाँ पे आके, क्या अरे अभी डिबेट का चल रहा, 2 घंटे से टाइम वेस्ट हो गया. सोशल मीडिया तो पता कर लो क्या है. आप लोग सब बोले और आपने लिखा, मेहनत करी होगी, बोलने की प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन मुझे ऑनेस्टली जितने डिबेटर्स थे मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अपने कितने विचार और कितने प्रभावित विचार हैं. क्या उठा रहे, किस लिए यहाँ पर उठा रहे, प्रभावित के लिए कि अपने के लिए? अपने के लिए. ओके. आप सब इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन और इंटरनेट, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये विचार आपके प्रभावित नहीं हैं उन चीजों से जो आपने नेट पे पढ़ी या व्हाट्सएप पे पढ़ी? कोई तरीका है डिस्कशन करने का? ओके. तो जब बेटा टेक्नोलॉजी नहीं थी, गांधी जी के पास अगर व्हाट्सएप होता तो गांधी जी तो दिन में 500 से 1000 वर्ड लिखते थे, है ना सर? 100 वॉल्यूम है उनकी राइटिंग के. और गांधी जी ने बैठ के कभी कोई किताब फिलॉसफी की नहीं लिखी. 3-4 किताबें वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ऑटोबायोग्राफी है, बट he used to reply to every letter which used to come to him, and he used to write on postcards, envelopes, right? और जब विचार पहुंचाना होता था तो अखबार निकाला, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, क्योंकि देश से कम्युनिकेट करना था उनको. देश उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था जब तक वो पर्सनली नहीं मिलते थे, या लोग चिट्ठियां लिखते थे. बहुत चिट्ठियां लिखी जाती थी उन दिनों. आज अगर ये टेक्नोलॉजी होती तो शायद प्रयोग कर रहे होते गांधी जी या नहीं, आई डोंट नो, वो तो उनके ऊपर है. हर आदमी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है अपने विचार डालने के लिए. इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सोच सकता है. पहली बात, आज तो आप लोगों ने डिबेट बोल ली, लेकिन मेरी एक सलाह है आप लोगों को, ये देश तुम लोगों को चलाना है. हमारी जनरेशन और हमसे पीछे की जनरेशन ने जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया. देख ही रहे हो क्या हो रहा है. हाँ, किसी भी पक्ष में आप हो, इधर हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, सेंटर में हो, ऊपर हो, नीचे हो, ये एक कॉमनिटी देश में बढ़ गई, उसका नाम है हेट्रेट.
अपनी बात है, डिबेट है। डिबेट में अब तुम सब लोग नफरत कर रहे हो एक दूसरे से। अरे करो यार, भारत की परंपरा है, भारत की परंपरा है। यहाँ तो अपनी बात कहता है आदमी बाद में, नफरत पहले ले आता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी अकल जरा इस्तेमाल करना जाके, और जो बोला है आज इसको फिर से पढ़ना और ये देखना कि इसमें कितना इन्फ्लुएंस उन बातों का है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, और कितना तुमने सोच के उससे डिसर्न करके अलग अलग करके लिखा है। और निश्चित रूप से फर्क पाओगे, क्योंकि हम लोग के दिमाग में चीजें जाती रहती हैं, हम ओपिनियन बनाते रहते हैं, सोच लेते हैं ऐसा है, और टॉप डाउन थिंकिंग करने लगते हैं। टॉप डाउन मतलब हम पहले फैसला करते हैं। तो अभी क्या पूछ रहा था यश, आप फॉर है कि अगेंस्ट है? आप हो सकता है वहां से यहां तक आते आते अगेंस्ट सोच के आए हो, फॉर हो गए हो, लेकिन अब आपने अगेंस्ट कमिट कर दिया, तो आप अगेंस्ट बोलिए। दिस इज टॉप डाउन थिंकिंग। इट इज गुड फॉर अ डिबेट एट अ स्कूल एंड कॉलेज लेवल. इट इज नॉट गुड टू रन द कंट्री. इट इज नॉट गुड टू contribute to the nation. It is not good to develop a nation. आप प्लीज समझिए, सिर्फ मोदी जी कह देंगे सुपर पावर बनना है, उससे नहीं बनते सुपर पावर। सुपर पावर तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम सुपर पावर नहीं बनोगे, और तुम लोग बनोगे नहीं, क्योंकि तुम पहले फैसला करते हो, बाद में फैक्ट डालते हो उसमें। मत करो। अगर एक लेसन ले जाना है आज यहाँ से, हर चीज को बॉटम अप सीखा करो। पहले फैक्ट्स लाओ, एनालिसिस करो, वो डिसर्न करो जो तुम्हारी सोच और जो तुम्हें बताया गया है, उससे पिरामिड बिल्ड करो, तब डीप थिंकिंग डेवलप होती है। और जो नेशन डीप थिंकिंग नहीं कर सकता वो कभी सुपर पावर नहीं बनेगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में नोबेल लॉरेट्स मारे मारे फिरते हैं। एक स्टैनफोर्ड में चले जाइए तो 50 लोगों के बोर्ड लगे हैं। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में जाओ और ढूंढ के लाओ। आपने सोचा कभी नोबेल लॉरेट हिंदुस्तान से पैदा क्यों नहीं होता है? हमारी थिंकिंग प्रोसेस हम बता सकते। प्रॉब्लम स्कूल्स में है, सॉरी मैडम, प्रॉब्लम स्कूल्स में, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कॉलेज में। सर माफ करिएगा, यहीं की चाय पी के यहीं को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन सच बोलना मजबूरी है। हम अपने, आप लोगों की गलती नहीं उतनी, आपकी गलती है कि आप हमें क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप वो बड़ी इजीली मान लेते हैं जो हम आपको बताते हैं, और आपको कैसे पता? हमें सब पता है। पता है? अरे यार, जब सामने खड़े आदमी पे तुम्हें नहीं पता, सर हिला रहे हो, तो किताबों की बातें, अखबार की बातें, व्हाट्सएप की बातों पे क्यों यकीन करते हो? So please, my advice is very simple. I'm not saying if you're not great, you cannot become great. But becoming great is a process which there is one rule for it. If you want to know something, know it deep, read about it, use your brain device, what we call in physics emergent consciousness कहते हैं जिसको। 4 फैक्ट डालेंगे, 8 डायमेंशन खुलेंगे। 2 + 2 4 का जमाना चला गया है। इसलिए तुम बच्चों, मेरी सलाह सिर्फ इतनी है कि टॉप डाउन थिंकिंग बंद कर दो। टॉप डाउन थिंकिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं हूं, तुम कुछ नहीं। इसमें हेट्रेड और एनिमोसिटी डेवलप होती है, विच इज नॉट यूजफुल फॉर एनीबॉडी, राइट? सो यू कैन ऑलवेज डिबेट, डिसएग्री, बट डोंट हेट, बिकॉज सब ह्यूमन बींग्स है ना, है कि नहीं? तो ह्यूमन बींग से प्रेम करो। विचार विचार हैं, चलने दो। उसमें जो तुम्हारा ज्ञान का क्षेत्र हो उसको बढ़ाओ। क्वेश्चन करो, टीचर्स को करो क्वेश्चन, पूछो, स्कूलों में पूछो, कॉलेज में पूछो। क्यों किताब में जो लिख दिया गया उसको अंधों की तरह मानना नहीं चाहिए, ठीक है? आज के बाद सर बुलाएंगे ही नहीं मुझे, कह देंगे बदतमीज आदमी ये आके सिर्फ बगावत फैला रहा है। लेकिन मैं तो हिंदुस्तान में हर जगह एक ही सवाल पूछता हूँ, नोबेल लॉरेट पैदा करने की दम है तो बताओ। 30 साल में सर एक नई फिलॉसफी हिंदुस्तान से नहीं निकली, राइट? जिन इंडियंस को मिला वो बाहर काम करते हैं, बाहर हमारे बच्चे करते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे देखो यार सत्या नडेला। अरे अभी यहाँ क्यों नहीं भाई? कृष्ण भगवान कह गए, गांधी जी कह गए, ज्ञान है तो लो उससे ज्ञान, कुछ कॉन्टेक्स्ट में डालो उसको। सिवाय पास्ट में अहंकार करने से कुछ नहीं होने वाला। वो पास्ट का ज्ञान को आप जब तक कंटेक्चुअलाइज नहीं करेंगे, राइट, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। ओके, थैंक यू सर। आपके शब्दों ने आज तक सभागार में उपस्थित पार्टिसिपेंट्स,
हमारे विद्यार्थी और विद्वजन, मैं सर्वप्रथम जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर एस.पी. त्रिपाठी जी को बधाइयाँ देना चाहूँगा कि उन्होंने आज का जो सबसे बर्निंग सब्जेक्ट है और टॉपिक है, उस पर युवा वर्ग के अंदर सोचने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उन्हें यहाँ बुलाया। हर चीज के गुण और अवगुण होते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप, और आपके नजरिए पे निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में ले रहे हैं और किस रूप में देख रहे हैं। डॉक्टर आलोक वाजपेयी इज ए साइकियाट्रिस्ट, और इनको मैं अक्सर कंसल्ट करता रहता हूँ, क्योंकि जब कभी मैं मानसिक वेदनाओं से परेशान होता हूँ तो मुझे वाजपेयी जी याद आते हैं कि यार नींद नहीं आती, क्या करूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया कोई नई चीज नहीं है। जब रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा वगैरह नहीं होते थे तो गांव में विस्परिंग कैंपेन चला करता था, बोले वाजपेयी जी आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, डुग्गी पिट गई। तो वो भी सोशल, वो भी सोसाइटी को आकर्षित करने के लिए ये वो भी एक माध्यम था, मीडिया का। जो समय बीतता जाता है और हमारी मानसिक सोच डेवलप करती जाती है, उसी प्रकार मीडिया का रोल भी बदलता रहता है। सच पूछा जाए तो मुझसे लोग कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है साहब, आप तो बड़े, आपसे तो सभी डरते हैं। अरे मैंने कहा भाई क्यों, ऐसी क्या बात है, ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया आज जो है वो एक, पहले कलम होती थी तो कलम से लिखते थे और फिर इसके बाद आप उसको पढ़ते थे, उसमें समय देना पड़ता। लेकिन सोशल मीडिया में कोई समय हमें की जरूरत नहीं है, वो तो आपके पास आया और फटाक से आपके ऊपर उसका रिएक्शन हुआ। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी का एक डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट। तो इसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। मेरा सोचना ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को, जिसकी मानसिकता भी स्वस्थ हो, अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए, बुराइयों की ओर नहीं देखना चाहिए। ये एक शरीर है, इसमें बहुत सी अच्छाइयां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं। तो आप कहां तक बुराइयों की तरफ जाएंगे? तो इसलिए मैं आज के दिन से इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन पार्टिसिपेंट्स हमारे आए उन सबको मैं बधाइयाँ देता हूँ। बहुत अच्छा बोले, जोरों से बोले, दम लगा के बोले। मुझे याद आ गया वो क्रिकेट का ग्रीन पार्क में पहला टेस्ट मैच हुआ था
तो भोले के भाई बम बोला करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी बात को आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा और ये एक बहुत बड़ा गुण है जो इन डिबेट्स के माध्यम से आपके अंदर विकसित होता है और उसके लिए ऐसे आयोजन आवश्यक है कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर, क्योंकि ये आपको सोचने का एक रास्ता, एक मार्ग देते हैं। और मैं यही कहूँगा कि वैसे तो एक से एक विद्वजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके सामने मैं इसमें मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में क्या कहूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया को मैं कोई नई चीज नहीं मानता। कोई भी नई चीज नहीं है। मानव प्रवृत्तियां पहले भी थी, संवेदनाएं पहले भी थी, भावनाएं पहले भी थी और आज भी है, और उन्हीं से प्रेरित होकर ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए कोई इसमें कोई नयापन नहीं है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देना चाहूँगा, स्पेशली तिवारी जी को जिन्होंने इतना अच्छा आज के दिन कार्यक्रम रखा और ये डिबेट ऑर्गेनाइज की। धन्यवाद। Thank you so much. A&D College, Allen House Business College, Christ Church College, DAV College, DG College, Guru Nanak Girls College, Jagran Degree College, Jagran Institute of Management, Jwala Devi Degree Hindi College, Mahila Mahavidyalaya College, PPN College, Saraswati Mahila Mahavidyalaya, BND and BSSD. Thank you so much for being a part of this wonderful event. Participants, you will be collecting your participation certificates from the help desk, okay? तो दोस्तों, आ गई है वो घड़ी जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार. So hold your breaths and tie your seat belts, because now we are going to announce the much awaited results of today's intercollegiate debate competition. Are you all ready? एक बार और जोर से आवाज आ जाए. Oh, so sorry. हाँ, बाथरूम से आ जाने दीजिए। So sorry, so sorry. तब तक तुम बोलते रहो। तब तक तुम अपने आइडिया देते रहो। Yes, definitely. So आज की हमारी इस डिबेट से हमको ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का सिर्फ एक पहलू नहीं है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट कनेक्टिंग विद वन अनदर. हमारे आज के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा हम कनेक्ट हो रहे हैं, जिसके द्वारा हम ग्रो हो रहे हैं, जिसके द्वारा इनफैक्ट हम अपनी कई सारी स्किल्स को इनहैंस कर रहे हैं, इसके ऐसे भी कई पहलू हैं जिन पर हम यूजुअली नजर नहीं डालते. आज हमको ये पता चला कि भले ही सोशल मीडिया हमको कनेक्ट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन destroying our social interactions. It is also somewhere down the line, it is destroying our human interactions, our human emotions. हमें ये समझना होगा कि हमारी ये जो दुनिया है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बेस नहीं है. इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है जो कि हमारे एक्चुअल ह्यूमन इंटरेक्शंस पर बेस्ड है, जो कि हमारे एक्चुअल ह्यूमन इमोशंस पर बेस्ड है. मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब हमारे कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि हमको सोशल मीडिया के ऊपर भी देखना होगा कि दुनिया में क्या असलियत है, क्या चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में जिसके बारे में शायद गलत खबरों के द्वारा या फिर फेक न्यूज़ के द्वारा हमको कुछ पता चलता है और हम बस अंधे होकर उस पर विश्वास कर लेते हैं. Which is not right, because we have to use our eyes, we have to use our human senses. तो बहुत ही अच्छा लगा आज आप सभी के विचारों को जानकर, and thank you so much for being a part of today's wonderful debate competition. So we are going to announce the results in just 2 minutes from now on. अच्छा, किस कॉलेज को लगता है कि they are the winner for sure? कोई क्या बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अभी अपना हाथ उठाना चाहेगा? नहीं. चलिए कोई बात नहीं, जल्दी हम लोग अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे and let's see who has won
the much awaited, much remarkable debate competition of Jagan Institute of Mass Communication. डेफिनेटली। तो हमारी ऑडियंस मेंबर्स में तो कई सारे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, मुझको पता है। तो क्या कोई ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पर आकर कुछ परफॉर्म करना चाहेगा परहैप्स? और पहले ही हमको एक प्रतिभागी मिल चुका है, आदित्य वाजपेयी। प्लीज कम फॉरवर्ड। आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत। बहुत बढ़िया बोले, बहुत ही सुंदर बोले, बहुत ही प्रख्यात है सब। एक बार जोरदार तालियां हो जा सकती है। लेकिन मेरी जो है भाई साहब एक से गुजारिश है। जी बिल्कुल। कि अगर ये लोग सोशल मीडिया भी नहीं चलाएंगे तो भाई साहब अभिषेक तो विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि वो कोई पिक्चर तो करता नहीं। एवरेस्ट का 16 मचाला तो हम ही बेच रहे हैं ना, है कि नहीं? सोचिए अगर यहाँ पर आमिर खान आए होते तो वो कैसे रिएक्ट करे? अरे वाह यार, बहुत अच्छा बोला, काफी अच्छा बोला। लेकिन क्या है, जब भी बीच बीच में शायरियाँ आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये कवि सम्मेलन नहीं, ये डिबेट ही कवि सम्मेलन हो गया। क्योंकि क्या है, फिर मेरा मन कर रहा था उधर मैं पीछे दरी बिछाऊं, है ना, और एक जो है साथ में मदिरा नहीं, कोल्ड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, और मैं बैठ के देखूं। क्योंकि सब यहाँ पे ना कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए है। सोशल मीडिया से ही चेप के यहाँ पे दिखा रहे और करिए अभी कि अगर शाहरुख खान यहाँ पे आए होते तो वो कैसे रिएक्ट करते? कैसे आप सब? अच्छा, बहुत मजा आया है। एक तो पीछे वाली सीट पे बात करने का बहुत मजा आया। ओके, तो मेरे को इशारा आ गया है, पेमेंट भी नहीं दिया। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत ही Okay, so participants, now is the time for the much awaited results. So before we start announcing the results, I'd like to call upon stage all the dignitaries. When you come on stage, please announce the name of your college, okay? DAV College. Congratulations, Adarsh. Congratulations. On the second position, we have Khazina Asif. She'll be coming and telling us the college. Khazina from A&D College. Congratulations, Khazina. And now, on the first position for the motion, we have Shreyanshi Shukla from Jagran Degree College. Congratulations, Shreyanshi.
And now we'll be coming forward to Against the Motion. On the third position, we have Amrit Kaur Bhatia. Amrit, please let us know the college name. Guru Nanak. On the second position against the motion, we have Shreya Sharma from Jagran Degree College. Jagran College of Arts, Science and Commerce. Jagran College of Arts, Science and Commerce. So very sorry. And now, on the first position against the motion, we have Brahmanand Mishra. Congratulations, Brahmanand. Brahmanand is from DAV College. So a big round of applause for all the winners and also for all the participants. सही सवाल क्या वही सवाल है मेरे पास सही सही गलत नहीं है बस सही गलत नहीं है अच्छे से सब कुछ celebration and tribulation. Very good conduct. In this inter-college debate competition, my heartfelt thanks to the judges of the day, Shri Alok Bajpai and Mrs. Bhavya Sharma. Thank you, sir, for enlightening not only the students but all of us. It is always a pleasure to hear you. I just want to quote one quotation. It's related to criticism. I much prefer the sharpest criticism of a single intelligent man to the thoughtless approval of masses. Thank you, Mrs. Bhavya Sharma, for your suggestions to the students. I hope they have taken note of your benevolent words. We owe special thanks to Shri Vayan Gupta sir for his continuous support and constant presence on such auspicious event. We would like to extend our gratitude to Dr. J.N. Gupta, CEO JEF, for being a pillar of strength. I extend my hearty thanks to Mr. Bhaskar Ganti, CDO JEF, Dr. Asmita Dubey, Principal Jagran College of Arts, Science and Commerce, Dr. MP Gupta, Director Jagran College of Arts, Science and Commerce, for their gracious presence. My gratitude to all the teachers from the various colleges and participants. Thank you all the student volunteers, media and staff. Thank you everyone. I would like to request all of you to please rise for the national anthem.
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मा